वेति तत्त्वतः वेति तवता मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदाति सिद्धये कश्चित् सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यताति सिद्धये यततामपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः. Yes, Shruti Mataji, can you please read the translation? Yes. Translation. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Hare Krishna. Okay, so it's an extremely famous verse spoken by Krishna, Bhagavad Gita. So there are few verses which are more famous for their impact and for the message that they convey. So it is one of them. Actually, this is the verse which glorifies bhakti. Can anyone tell how it glorifies bhakti? Okay, so actually in Bhagavad Gita, the whole one chapter is dedicated to Karma Yoga, then one chapter of Dhyan Yoga, then Jnana Yoga, So then there is a Bhakti Yoga. Bhakti Yoga actually Krishna speaks in the 9th chapter. So all the different yogas Krishna speak of. Yoga means what does the yoga word mean? Connection with God. Yes, very nice. Prashant and Sanat. So yoga means you is to join. Yoga means to join. Yoga. So to join with who? The soul tries to connect itself with the super soul. Or the soul tries to connect itself with the supreme personality of Godhead. That is yoga. उन दोनों का योग होता है. They connect with each other. So the different ways by which we can connect with Krishna. Either we can connect through Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. Okay? But then when we talk of Karma Yoga, Jnana Yoga, all this, they don't connect. Yes, thank you, Arati Mataji, to link with Supreme. Yes, that's what the yoga means. ये नहीं योग मतलब gymnastic. People they think that yoga means अभी तो लोग योगा का यही मीनिंग निकलता है. लोगों को लगता है physical gymnastics करो और वही योगा हो गया. That is not yoga. That is just a small part of yoga. It's a small part of Ashtanga yoga. बाकी उसमें और भी बहुत कुछ है. यम, नियम, आसन, प्राणायाम. We just talk of asana, but dhyan, samadhi, so many things are there in that. Ashtanga means 8. So there are 8 parts of yoga there. Nonetheless, so this physical exercise they were meant so that we can keep our physical body fit, so that our mind can be fixed upon Krishna. That was the goal of Ashtanga yoga. So that in the end, what comes is the samadhi. So that means we are able to completely focus our mind on Krishna, on the Supreme Personality of Godhead, on the Paramatma. So Ashtanga yoga they used to fix on Paramatma. So nonetheless, so we are talking about the yogas now. So all these yogas, the goal is that through this yoga we get connected with Krishna. But when we talk of Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyan Yoga, the 3 other yogas, we are not able to realize Krishna as it is. Now here in this verse, what Krishna is saying? Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhya. Manushyanam sahasreshu. Sahasreshu means thousands and thousands. Kaschid means कोई यथाति सिद्धे, कोई तो परफेक्शन कर पाता है ना. जो एंडेवर कर रहे हैं कृष्णा को समझने के लिए, मतलब कोई तो पहले से यू कैन से दैट the human population, it's in billions, right? Human population. What to speak of the living entities? Living entities are unlimited, even on this single planet Earth. Unlimited living entities. तो उन unlimited living entities में कुछ तो billions human beings हैं. उन कुछ billions human beings में hardly कोई lakhs में कोई devotee, lakhs में होंगे जो कोशिश करते हैं समझने की मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ये दुनिया किसने बनाई है, क्यों बनाई है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं दुनिया में,
ये सोचने की कोई तो कुछ तो कोशिश करते हैं, मे बी लैक्स, मे बी करोड़ मैक्सिमम, एंड देन उसमें से कुछ लोग सोचने के बाद स्टेप बढ़ाते हैं आगे, और स्टेप आगे बढ़ा के क्या करते हैं, एक्चुअली कुछ कोशिश करते हैं समझने का, सोचते ही नहीं, सोचने के बाद स्टेप भी लेते हैं, है ना। सो दे विल प्रैक्टिस कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। और उसको एग्जांपल कैसे दिया गया है भगवान को समझने का, भगवान को समझने के 3 स्टेज है। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड? वी अंडरस्टैंड कृष्णा एज ब्रह्म ज्योति, राइट, ब्रह्मन। सो stage comes is we understand Krishna as Paramatma, a more personal feature. The third stage comes is we understand Krishna as it is, that is Krishna as the supreme personality of Godhead, as a person himself. तो ये जो फर्स्ट स्टेज है उसका कोई एग्जांपल याद है आपको किसी को? You have heard of any examples how we understand these 3 stages? Brahman, Paramatma and Krishna as a person. Prabhupada gave 2 examples to understand this. Analogies I am asking. Okay. So one example Prabhupada gave, or one analogy that Prabhupada gave, is that of a sunlight. Yes, sun rays. Yes, thank you Vaishnavi Mataji. Sun rays, sun and sun god. So when we see the sun rays, they are like the energy coming out from the sun god. But if we say that this sun rays is sun, mountain, trees and parrot. Thank you Tejas. Yes, thank you. So let us take the first one. If we say that sun rays is equal to sun, in a way it is correct, but it's not completely correct, right? Agree? Okay, yes, thank you Sana Mataji, Tejas Prabhu, Pashan, Prabhu, Shruti Mataji. So sun rays is definitely a feature of sun, but it's not the complete understanding of sun. Sun is way bigger, way more powerful and way more encompassing different features rather than just sun rays, right? Sun rays is just a small fractional part of sun. So sun rays is the energy of sun, but it's not equal to sun, right? So this sun rays has been compared to the understanding of a Brahman. Brahman means जो हम बोलते हैं ना सब जगह, कई लोग सुना होगा आपने भगवान के बारे में, उनको पूछो कि आपको क्या लगता है भगवान क्या है? भगवान मेरे हिसाब से ना कोई तो एनर्जी है, सब जगह वो एनर्जी फ्लो कर रही है। अहम ब्रह्मास्मि, है ना, सोहम, स अहम, that is me, so aham, or aham brahmasmi. Aham means मैं and brahmasmi means I am Brahman, right? So people understand that ये जो सब कुछ है वो सब कुछ ब्रह्मन है, और ये जो ब्रह्मन है यही मैं हूँ, और ये ब्रह्मन ही सत्य है, इसके आगे कुछ नहीं है. So this Brahman, they say, is Brahman is the Brahma Jyoti. So they say that this Brahman is the energy which is flowing everywhere, and everywhere is just an energy. और ये एनर्जी के ऊपर की जो कवरिंग्स है वो इल्यूजन है. Okay, so this is what Brahman realization is, but it is just like understanding sun rays, that कि सिर्फ एनर्जी को समझ रहे हो आप, लेकिन वो एनर्जी के पीछे का एनर्जेटिक है. So that goes the next stage, that is Paramatma. So not only there is an energy of Lord, obviously Krishna says that, you know, Maya Dakshina Prakriti Suyate Sa Chara Chara. ये मेरी एनर्जी है पूरा material world, right? So Krishna does declare. And in fact, if you read Sri Ishopnishad, you know, and so Krishna, he declares himself that this Brahma Jyoti, I am the source of that Brahma Jyoti. So yes, Brahma Jyoti is there. That is one realization of Krishna. Then second stage comes is when we realize Krishna is Paramatma. And then when we realize Krishna is Paramatma, that is we understand that the sun rays तो है, लेकिन sun rays sun से आ रही है. तो ये ब्रह्मन है कृष्णा की एनर्जी है, ब्रह्म ज्योति है, और ये ब्रह्म ज्योति कृष्णा से आ रही है. You know, Krishna is there, God is there, उस God से आ रही है वो एनर्जी, who is energetic, और ये एनर्जी है. तो वो होता है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज परमात्मा, जो कि यू नो ध्यान में योगी लोग होते हैं, वो लोग उसको अचीव करते हैं. यू नो, जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है, वी कैन से देयर ज्ञान, यू नो, ज्ञान योगी, देन देयर इज ध्यान योगी तो अष्टांग योग वगैरह करते हैं, वो परमात्मा के ऊपर फोकस करते हैं. आप देखो ना, लोग तपस्या करने चले जाते थे, तो तपस्या करने किस पर तपस्या करते थे? आंख बंद करके सो जाते थे क्या? नहीं, वो आंख बंद करके अपने अंदर जो परमात्मा फीचर है उसके ऊपर फोकस करते थे और अपना पूरा फोकस उस पर ले जाते थे. सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग परमात्मा फीचर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सन. एंड देन नेक्स्ट कम्स इज सन के पीछे भी कोई है, सन के पीछे सन गॉड है, विवस्वान, है ना. विवस्वान इज द नेम ऑफ सन गॉड. सो दैट सन गॉड इज द अल्टीमेट रियलाइजेशन. जैसे भूमि है तो भूमि देवी है, इसके पीछे ये अर्थ प्लेनेट है, द प्लेनेट इज देयर,
पर वो अर्थ प्लेनेट के पीछे एक प्रीडोमिनेटिंग डीटी जो उस अर्थ प्लेनेट को कंट्रोल करती है, राइट? सो एवरीथिंग इज पर्सनल, नथिंग इज इम्पर्सनल. इन अनफॉर्चुनेटली इन कलयुगा वी हैव मेड एवरीथिंग इम्पर्सनल, है ना? लोगों के भी नंबर मिल जाते हैं, रोल नंबर्स 1 2 3 रोल नंबर, राइट? बट इट इज नॉट लाइक दैट. सो देन देयर इज अ लास्ट स्टेज इज ब्रह्मन रियलाइजेशन. Reshti Mataji. So there is Brahman realization, then there is Paramatma realization, and there is Supreme Personality of Godhead, that is Bhagwan realization. And this Bhagwan realization जब होता है तब हम बोल सकते हैं कि yeah, now we are claiming to understand Krishna in a better way. We can't say complete way. No one can understand Krishna as it is completely. Only maybe Radharani. Greatest sages and greatest demigods, they fail to understand Krishna. We have heard enough stories. Brahma getting bewildered, Indra getting bewildered, so many. They just get bewildered by seeing the potency of Krishna. ये भगवान है. Brahma got bewildered कि ये कृष्ण भगवान है जो इन ग्वालों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, उनका झूठा खा रहे हैं. ये भगवान हो सकते हैं? No. My Bhagwan is so supreme. Right? So they get bewildered by seeing Krishna's pastimes. Indra getting bewildered again and again, not once, many times he gets bewildered that Krishna is supreme. तो उस सुप्रीम की जब हम बात करते हैं, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं, उनको समझना इजी नहीं. जस्ट इमेजिन, मतलब वी टेक कृष्णा सो चीप, बट जस्ट इमेजिन उन्होंने सब कुछ बनाया है. एवरीथिंग इज क्रिएटेड. हमको एक छोटा सा ह्यूमन बॉडी समझने में लाइक आई हैव डन माय एमडी मेडिसिन, एमबीबीएस एंड मेडिसिन. सो 5.5 साल का मैंने एमबीबीएस किया, 3 साल का एमडी मेडिसिन किया, और उसके बाद मैंने 2 साल के कोर्स किए. तो कितना हो गया? 10.5 years. ओके, 10.5 साल मैंने पढ़ाई की है, और अभी भी कोई मुझसे पूछे कि आपको ह्यूमन बॉडी पूरा आता है कि नहीं आता, आई डोंट नो. ह्यूमन बॉडी सो कॉम्प्लेक्स, सो डायनामिक, सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो रियली एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिस ह्यूमन बॉडी. तो कृष्णा ने नहीं, केवल ह्यूमन बॉडी नहीं, हर एनिमल का बॉडी, हर मैटर को बनाया कृष्णा ने, और बहुत इजीली बनाया. तो उस पर्सन को समझने की अगर हम बात करें तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव लिमिटेशन. ये 1.4 kg का हमारा जो ब्रेन है, 1.2 से लेकर 1.4 की इसकी वेट रहता है इसका, एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन. वो क्या ही समझेगा उस सुप्रीम पर्सनालिटी को जिसने ये सब कुछ बनाया. हमको उसने जो बनाया है वही हमको समझ में नहीं आता. तो बनाने वाले को समझने के लिए तो मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी कांट अंडरस्टैंड हिम, राइट? बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड हिम. हाउ? Yes, how we can understand him? When he showers his mercy upon us, right? जब भगवान दया करके हम पे मर्सी करते हैं, तब जब हमको एम्पावर करते हैं, तब हम थोड़ा भगवान को समझ सकते, थोड़ा. बाकी हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों नहीं है भगवान को समझने की, right? तो हम भगवान को भगवान के रूप में तभी समझ सकते हैं जब भगवान की मर्सी हम पर आ जाती है, और ये भक्ति योग से होता है. तो ज्ञान योग, कर्म योग में कृष्णा उतने अट्रैक्टेड नहीं होते जितना भक्ति में होते हैं. क्योंकि भक्ति में कृष्णा अपने आप को पूरा ऑफर कर देते हैं. अच्छा, व्हाई कृष्णा हैज मेड दिस भक्ति योगा सो डिफिकल्ट? इट इज दुर्लभ एक्चुअली. मनुष्य नाम सहस्रेषु बताए ना कैसे दादा. सो वासुदेवम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ. सब महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है. इट्स एक्सट्रीमली रेयर who understand that Krishna is supreme personality of Godhead. प्योर भक्ति कृष्णा जल्दी नहीं देते. अगर किसी को भुक्ति चाहिए, भुक्ति में एंजॉयमेंट, दे देंगे कृष्णा. मुक्ति चाहिए, वो भी दे देंगे कृष्णा. जटाओ, लिबरेट हो जाओ, नो. बट अगर किसी को भक्ति चाहिए तो भक्ति इसलिए नहीं मिलता. अभी आप सब लोगों के क्या इतने तो भक्त लोग हैं, कुंभ मेले में 1-1 करोड़ लोग स्नान करते हैं, पर उसमें से मेजोरिटी भक्त नहीं है. ज्यादातर जो रहेंगे वो कर्मी योगी रहेंगे, ज्ञान योगी रहेंगे, भक्ति बहुत रहे. सो व्हाई कृष्णा इज मेड भक्ति सो रहे. कृष्णा डिक्लेयर्स इन भगवद्गीता, राजविद्या राजगुह्यम सीक्रेट, टॉप मोस्ट सीक्रेट, भक्ति सीक्रेट. बोले कहाँ सीक्रेट है प्रभु जी? हमको सबको पता है हरे कृष्णा जप करना है. सीक्रेट क्या है? यस, कैन एनीवन टेल अपॉन इट? आज लगता है सब एकदम सोने के मूड में. कृष्णा गेट्स कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय भक्ति. वेरी नाइस आंसर वैष्णवी माता जी. यस, वंडरफुल आंसर. कृष्णा ने भक्ति इसलिए सीक्रेट रखा है, इसलिए इतना क्या बोलने का प्रोटेक्टेड रखा है, क्योंकि एक बार अगर किसी को शुद्ध भक्ति मिल गई
कृष्णा बिक जाते हैं। जस्ट इमेजिन, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते, दुनिया नहीं, जो अनंत ब्रह्मांडों को कंट्रोल करते हैं, वो बिक जाते हैं, वो उस भक्त के आगे कंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो नेचुरली अगर ये पोजीशन आपको चाहिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तो डिफिकल्ट रहेगा, राइट? सो इट्स नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट इजी। हाँ, ढोंग करना अलग बात है, हिपोक्रेट बनना अलग बात है, नो दैट वी ऑल कैन डू वेरी नाइसली, बट बिकम अ रियल डिवोटी, बिकम अ रियल भक्त, नो, दैट इज रेयर, दैट इज रेयर। शुद्ध भक्त, दैट इज रेयर, रियली रेयर। ब्रह्मांड तारित है, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को तर सकता है एक शुद्ध भक्त, एक शुद्ध भक्त, राइट? We have seen Prabhupada, you know, he alone delivered the whole Western world at that time. Hippies को हैप्पी बना दिया प्रभुपाद। तो ये जो शुद्ध भक्ति है, हमको उसके लिए प्रयत्न करना है, क्योंकि जब हमको शुद्ध भक्ति मिलती है तो कृष्णा बिक जाते हैं। We have Krishna then. कृष्णा कुछ भी करने को तैयार है अपने भक्तों के लिए। भक्त पराधीन, भगवान क्या है? भक्त पराधीन, भक्त के अंदर में हो जाते हैं। वो जो अजीत है वो जीत जाते हैं। अल्टीमेट पर्सनिफाइड फॉर्म ऑफ प्योर डिवोशन। आरती माता जी से यस, बिकॉज श्रीमती राधा रानी इज द अल्टीमेट पर्सनिफाइड फॉर्म। ट्रू, राधा रानी इज द लादिनी शक्ति, है ना? लादिनी शक्ति मीन्स वन हु गिव्स। ओके, व्हाट इज लादिनी शक्ति? Krishna has many shaktis, many energies, and Radharani is, yes, pleasure-giving energy. Thank you, Vaishnav Mataji. Ladini Shakti. Krishna is, Radharani is Ladini Shakti. So Radharani gives pleasure. It gives joy. Radharani not only gives joy to Krishna, she gives joy to everyone, every living entity. हमारे अंदर जो भी थोड़ी बहुत जो भक्ति है ना, वो राधारानी की कृपा से। जो भी ड्रॉप का भी ड्रॉप जो है हमारे अंदर भक्ति का, वो राधारानी की कृपा से है। और इस भक्ति से हमको आनंद मिलता है ना। ये तो मटेरियल वर्ल्ड तो हॉरिबल है, संसार दावानल, दिस इज संसार दावानल, बट देन भक्ति इज व्हिच गिव्स अस सूदिंग जॉय। एक्चुअली हमको समझ में नहीं आता कि हम लोग जपा कर रहे हैं या हम लोग ये जो लेक्चर सुन रहे हैं, हमको लगता है इसमें क्या है, यू नो, अरेंज हो गया, लेक्चर में आ गया, बैठ गई, सुन लिया, और क्या है उसमें। पर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एक मिनट हम जो कृष्णा को दे रहे हैं, कृष्णा को हम ऋणी बना देते हैं, ऋणी समझते हैं। वी मेक कृष्णा इंडेप्टेड टू अस, और कृष्णा उसके बदले में इतना देते हैं कि हमको समझ में नहीं आता क्या क्या हो गया हमारे पीछे बैकग्राउंड में। कृष्णा नॉट सम चिंगूस, कंजूस नहीं है कृष्णा, इज मैग्नानिमस। तो अगर हम उनको कुछ देते हैं, टाइम देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, कृष्णा इतना देते हैं कि हमको रियलाइज भी नहीं होता। एंड राधा रानी इज द वे हाउ इट हैपेंस थ्रू द भक्ति, राइट? ओके, थैंक यू हर्षा माता जी, हरीशा माता जी, यस हर्षा, ओके, थैंक यू ममता माता जी, वैष्णव। सो जब हम जपा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे पता नहीं कितनी तकलीफें जो हमको आने वाली थी, कितने पाप जो होते हैं, कृष्ण उनको ऐसे झटके में उड़ा देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो, क्या बोलेगा, ओके, एनीवे आई वोंट गो इनटू दैट आई वाज ट्राइंग टू, यू नो, कोट फ्रॉम चौराष्टकम में, जिसमें बिल्व मंगल ठाकुर ही ग्लोरीफाइज कृष्णा बाय चेस्टाइजिंग हिम, and he glorifies the holy name of Krishna, कि how your holy name it destroys the sins, one mountain like sins. Anyway, that's a different thing. So where was I? I just got lost with Bilbo Mangal Thakur. Yes, what we were discussing? Yes, we were discussing the rarity of bhakti. So कृष्णा इसको बहुत संभाल के रखते हैं, भक्ति को देते नहीं हर किसी को। तो अगर हमको भक्ति चाहिए तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि we actually deserve it. If not deserve it, actually deserve तो कभी नहीं करेंगे, but at least we actually want it, sincerely we want it. तो ये हमको प्रूव करना पड़ेगा कृष्णा को, और ये हमको प्रूव करने के लिए सिंपल से तरीके हैं, हमको कुछ स्टेप्स लेने हैं, है ना? तो स्टेप्स क्या लेने हैं? हमको रोज चैंटिंग करनी है अच्छे से, हमको रोज भक्तों का संग लेना है ना? हमको थोड़ा सा रीडिंग करना है, हियरिंग करना है। ये अगर हम स्टेप्स लेते हो, 4 नियमों का पालन करना है। इनमें से अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, तो कृष्णा 100% हमको भक्ति देंगे। और भक्ति जो है
sometimes we take it very cheaply, but it is very sudurlava, actually sudurlava. It's rare, extremely rare, but Krishna is giving it to us, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीवा गुरु प्रसाद पाए कृष्ण भक्ति लता बीज गुरु प्रसाद पाए ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव ब्रह्मांड भ्रमिते तो हमको जो मिल रहा है ना वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एक्सट्रीमली 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 फॉर्चुनेट वी जस्ट डोंट रियलाइज इट क्योंकि हमारा बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है बहुत लिमिटेड ब्रेन का कैपेसिटी है लेकिन हम अगर आचार्य पर फेथ रखे शास्त्रों पर फेथ रखे शास्त्र चक्षु से अगर हम देखें with the eyes of scriptures, then we will understand what we are getting is really, really invaluable. We are extremely fortunate that we are able to hear about Krishna. In fact, अगर आपको एक बात बताओ ना, you must not have heard it. पहले के जो 3 युग थे ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, right? Sometimes devotees say कि हम पहले के युगों में क्यों नहीं थे, कहाँ कलयुग में फंस गए. इन पहले के तीनों युग में कृष्ण के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता था. Do you know that? Forget about माधुर्य रस and all that. ज्यादा से ज्यादा लोग विष्णु की पूजा कर पाते थे. कृष्णा is so secret. Is the topmost thing. Topmost. तो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप पास्ट टाइम्स में कृष्ण की भक्ति लोगों को पता भी नहीं था. जब कृष्णा खुद अवतरित हुए तो उनके बारे में स्क्रिप्चर्स में आ गया. मदर विजय तो पता था कृष्ण नाम की कोई है, नहीं तो पता होता ना कृष्णा. अरे ये कृष्णा तो वही है जो स्क्रिप्चर्स में नहीं था वर्णन, राइट. तो कृष्ण के बारे में जो हमको पता चल रहा है कलयुग में बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड ऑल हिज अनुयायी स्पेसिफिकली अवर प्रभुपाद, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, युगों में रेयर है. और उसमें भी हम तो जिस परंपरा में आ रहे हैं इस्कॉन में उसमें ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय जो है उसमें माधुर्य रस है, राइट. द टॉप मोस्ट रस अमंग द 5 रसास, 5 जो रस है उसमें टॉप मोस्ट रस है गोलोक धाम, द टॉप मोस्ट. इफ यू रीड ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कृष्णा को तो उसमें ही डिक्लेयर्स दैट गोलोक धाम इज द टॉप मोस्ट धाम, है ना. above all, above the Lord, abode of Lord Shiva, above the Lord of Devi, है ना. So he declares that. हमको जो मिल रहा है ना, we just are blissfully unaware क्या मिल रहा है. So rare, so rare, so rare, and we are so fortunate. अब उस so fortunate में unfortunate हो सकता है अगर हमको ये मिल रहा हो रहा, या तो हम इसको छोड़ ही दें, वो तो मतलब लिटरली भूल जाओ, वो तो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट होगा. या फिर हम इसको बहुत ही हल्के में ले, बहुत ही लाइटली ले, बहुत ही कैजुअली ले, ठीक है चल रहा है चलने दो. We have to take it seriously. We should take it wholeheartedly. Krishna is trying to approach me, that supreme personality of Godhead, that so loving personality, that such a magnanimous personality wants to come, wants to, embrace me, wants me to come near him. Radharani is there for me. The spiritual world is waiting for me. It's so rare to come out of this material world cycle of birth and death. So rare. And we have got this opportunity, and Krishna is showering mercy. Profusely mercy has been showered. क्योंकि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं. स्पेसिफिकली कलयुग में भगवान के नाम की महिमा और भगवान के नाम की पोटेंसी मिलियंस ऑफ टाइम्स बहुत बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु. बाकी के युगों में बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है गोलोक धाम जाना. अभी इतना इजी हो गया है. It's all because of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and all his disciples. So we have got that mercy, we have got that opportunity. एक विंडो है, और ये विंडो भी पता है किसी को पता है कब तक चलेगा? In terms of number of years. Yes? ये लोग सोचते ठीक है जितनी भक्ति हो गई. Yes, 10,000 years. Thank you, Shreya माता जी. 10,000 years, yes. That's the only golden period we have. उसमें भी जो लास्ट के जो ईयर्स रहेंगे तब तो और हालत खराब हो जाएगी. Yes, स्नेहा माता जी, it's true. तो अगर मान लो हमको अगला बर्थ लेना पड़ा, obviously I don't want, neither Krishna wants that, but अगर हमको लेना पड़ा अगर अगला बर्थ, और हो सकता है हमने बहुत अच्छे पुण्य किए हो या हमने बहुत भक्ति की है लेकिन बहुत ही भौतिक इच्छाएं रह गई, बहुत मेटीरियल डिजायर्स रह गए, तो हम चले गए स्वर्ग में. स्वर्ग का एक दिन या 12 घंटे कितने होते हैं हमारे? स्वर्ग के 12 घंटे हमारे कितने होते हैं?
यस वैष्णवी माता जी कितने होते हैं 6 months राइट 6 months तो वहां का एक दिन कितना हुआ हमारा 1 साल राइट अगर स्वर्ग में जाके मान लो 100 साल या 1000 साल जी के आ गए वो हो गया काम खत्म 10,000 का विंडो क्लोज उसके बाद अगर हम ह्यूमन फॉर्म करके आए भी तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कलयुग इतना बढ़ जाएगा कि भगवान का नाम लेने पे लोग मार देंगे आपको पीपल विल किल द पर्सन हु इज टेकिंग द नेम ऑफ लॉ दैट्स हाउ कलयुग विल प्रोग्रेस राइट I don't want to discuss how Kali Yuga will progress or whatever will happen 12 canto भागवतम you know भागवतम का जो 12वां कैंटो है उसमें डिटेल में बताया कलयुग में क्या क्या होने वाला है It's horrible actually milk will become extinct rivers will become dry all the holy places will unmanifest them sorry you know unmanifest is not the right term okay all the holy places will unmanifest themselves it will become so difficult devotees भगवान के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे भगवान की प्रतिमाएं तोड़ दी जाएंगी and we won't be able to see Krishna. We won't be able to hear about Krishna. We won't be able to understand what is Krishna. भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे कोई बताने वाला ही नहीं होगा हमें अभी हमको अपॉर्चुनिटी है we can really grab this opportunity and come near to such a loving person. एक बार कृष्णा से हमारा थोड़ा भी मन में अटैचमेंट हो गया ना बस हो गई गाड़ी जम गई बात बाकी कृष्णा संभाल लेते हैं फिर आगे की गाड़ी जुप चलती है पर शुरू में हमको थोड़ा सा अटैचमेंट चाहिए यस वैष्णवी माता जी गायत्री माता जी Sneha Mataji, Sneha Mataji, yes. So we have to just develop that love and attachment towards Krishna, and for that first we have to show some sincerity. Krishna देंगे नहीं आप, Krishna इतना easily नहीं देते अपने आप को, right? This is very क्या बोलने का? That way is reserved. वो पहले आपको बोलेंगे ठीक है मैं तुमको मेडिटेट अगर हम भक्ति अच्छे से करते हैं ना I remember you know long back Radhesham Prabhu is Radhesham Prabhu temple president here. You know, he told me once कि ऋषि my name is Rishi I was not initiated at that time so he told me कि ऋषि अगर तुम भक्ति कर रहे हो ना जपा बहुत अच्छे से कर रहे हो ना जपा स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से कर रहे हो ना इट इज लाइक सत्युगा में जो तुम तपस्या करते थे तो अगर तुम्हें जपा अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारी सारी मेटेरियल डिजायर्स फटाफट फुलफिल होने शुरू हो जाएंगी एंड देन वी गेट ट्रैप्ड इनटू दैट राइट सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम इस मेटेरियल प्लेजर्स में ना अटके राइट हमारा गोल क्या है वेयर इज आवर गोल To meet Krishna. Yes, to meet Krishna. Thank you, Mataji. हमारा गोल है हमको कृष्णा से मिलना है. Just imagine the moment when you will be meeting Krishna and Radha Rani. क्या मोमेंट होगा? आएगा वो मोमेंट भी आएगा. क्यों नहीं आएगा? You know, मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन. हाँ, हम भगवान के अंश हैं. हमारा हक है भगवान पे. So मोमेंट भी आएगा. बस हम continuously, persistently भगवान की भक्ति में लगे रहें. उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें कृष्ण ने जो हमको दिया है ना कृष्ण इजीली देते नहीं है हमको दिया है कृष्ण ने ये बहुत ही रेयरली देते हैं कृष्ण सोल्स को जो हमको दिया है सो वी शुड प्रिजर्व इट एंड वी शुड एनहांस इट यस बीइंग इन द फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड मीट हिम यस थैंक यू ओके सो एनी कमेंट्स एनी सजेशंस और एनी पॉइंट दैट यू हैव लाइक्ड और एनी क्वेश्चंस थैंक यू श्रुति माता जी फॉर एनकरेजिंग मी थैंक यू वैष्णवी माता जी गायत्री माता जी साना माता जी मई प्रशांत प्रभु अनुष्या माता जी रामेश्वर प्रभु वैष्णव माता जी सना माता जी थैंक यू कल्याणी माता जी यस एनी पॉइंट विच यू लाइक इन टुडेस क्लास और एनी क्वेश्चंस यू हैव थैंक यू ममिता माता जी यस प्रभु जी कृष्णा भक्ति जो इतना सीक्रेट है वो बहुत अच्छा लगा जैसे कृष्णा भक्ति से हमारे पास आते हैं वो बात यस ट्रू वो अजीत कृष्ण जीत लिए जाते हैं भक्ति से राइट जी ना भगवान का नाम वेरी नाइस यू हैव टेकन द एसेंस आप लोग एसेंस पकड़ लेते हैं दैट्स गुड ओके एनी अदर कमेंट्स और पॉइंट्स और एनी क्वेश्चंस यू हैव आप लोग क्वेश्चन नहीं होते आई एम सरप्राइज बट दैट्स गुड इन अ वे This is very rare. We have to prove our sincerity. Thank you, Vaishnavi Mata. Yes, it's very rare, and we have got it. Actually, we are getting it. We have to continue receiving it. हमको सिर्फ रिसीव करना है कृष्णा बरसा रहे हैं मर्सी होली नेम के थ्रू एसोसिएशन के थ्रू That is for the point that we need to show that we actually desire this bhakti. Yes, very nice. That is for क्या हमको डिजायर करना है you know हम डिजर्व तो नहीं करते हमको एटलीस्ट शो करना है कि हम डिजायरस है राइट we desire Krishna we desire bhakti at least उतना तो हम शो करें very nice yes any other
Okay, so we'll end the class here. Thank you so much for coming and joining. And it's my really great fortune that I'm able to interact with such nice devotees. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Gopal. हरे कृष्णा प्रभु जी Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.